Welcome students. In this video, let us look at the topic of linear equations in two variables. So in 8th class, you have already learned linear equations in one variable. Okay, so in this chapter, let us try to understand the meaning of linear equations in two variables. So linear equations का मतलब क्या है? An equation where the largest power of the variable is 1 is called a linear equation. So linear equation एक variable में हो सकता है, 2 variables में हो सकता है, 3 variables में हो सकते हैं. For example, 2x minus 5 is equal to 4x. This is an example of a linear equation in one variable x. अब 4x plus 3y is equal to 3x minus 2y plus 5. This is an example of a linear equation in two variables. इस equation में आप देख सकते हैं x भी है, y भी है. And x का highest power कितना है? 1. Y का highest power भी 1 है. As you have seen in the lower classes, an equation is simply an equality of two expressions. One expression is on the right side of equality, one expression is on the left side of equality. एक left side में है, एक right side में है. दोनों के बीच में equal to है. Then we call it an equation. And variable का highest power 1 है तो linear बनेगा. अगर दो variables है तो it is a linear equation in two variables. So एक और example लिखिए. Linear equation in two variables चाहिए. So x minus 2y plus 5 is equal to 4 minus 2x plus 5y. This is also an example of a linear equation in two variables. और अब ध्यान से देखा तो 3x minus 5y by 4x plus 2y is equal to 3 by 4. अब ध्यान से देखा तो this will also be an example of equation in linear equation in two variables. So linear equations in two variables बहुत अलग-अलग forms में हो सकते हैं. So what is the definition of a linear equation in two variables? एक definition जैसा लिखना है तो. So what is the basic definition of a linear equation in two variables? Simply an equation which can be expressed in the form of ax plus by plus c equal to 0. Some number times x plus some number times y plus some number is equal to 0. जैसा आप एक्सप्रेस कर सकते हैं तो then such equation is called a linear equation. Where extra condition where a and b are not simultaneously zeros. a and b दोनों zeros नहीं हो सकते. एक जीरो हुआ तो तब भी वो लीनियर है, बट लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हो जाएगा. समझ में रहे? अगर ए एंड बी दोनों जीरोस हो गया तो वो लीनियर इक्वेशन बचेगा नहीं, बिकॉज वेरिएबल्स आर गेटिंग डिसअपियर्ड. सो हमको एक इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए एंड बी आर नॉट साइमल्टेनियसली अगर लिखा तो वो लीनियर का डेफिनेशन होगा. साइमल्टेनियसली मान लीजिए निकाल दीजिए. वेयर ए एंड बी आर नॉट जीरोस. ए भी जीरो नहीं हो सकता है, बी भी जीरो नहीं हो सकते हैं. इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ध्यान दे दीजिए, अगर ए जीरो हो गया तो दैट विल बी ए लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल. अगर बी जीरो हो गया तो that will be a linear equation in x. So if you want to have a linear equation in
2 वेरिएबल्स। सो आपका ए एंड बी दोनों 0 नहीं हो सकते हैं। ओके, बट आप बाद में देखिएगा, वंस यू इंक्रीज योर अंडरस्टैंडिंग, ए एंड बी 0 हुआ तो दोनों 0 नहीं हो सकते। अगर दोनों में कोई एक 0 है तो उसको भी आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जैसा कंसिडर कर सकते हैं। दैट विल बी अ स्पेशल इक्वेशन। सो फॉर नाउ ऑन, so a linear equation in 2 variables has both x and y in it. ये क्लियर है? अब ध्यान दे दीजिए, बट जो हम इक्वेशंस लिखे हैं, द इक्वेशंस विच वी हैव रिटन हियर, as you can clearly see, they are not in the form of ax plus by plus c equal to 0. क्योंकि ये फॉर्म में राइट हैंड साइड यू हैव 0, दैट इज द स्टैंडर्ड नंबर। बट यहां राइट साइड में 0 नहीं है, यहां भी राइट साइड में 0 नहीं है, यहां भी राइट साइड में 0 नहीं है। सो आर दिस लीनियर इक्वेशंस? यस, क्योंकि डेफिनेशन है एन इक्वेशन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c equal to 0 is a linear equation. ध्यान दे दीजिए, ये सारा इक्वेशंस को 2, 3, 4 I'll try to express it in standard form. हर एक लीनियर इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म इज दिस ax plus by plus c equal to 0. अगर इस फॉर्म में लिखा तो वी कॉल इट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, एंड एवरी लीनियर इक्वेशन कैन बी रिटन इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। ध्यान दे दीजिए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरा फर्स्ट इक्वेशन है 4x plus 3y is equal to 3x minus 2y plus 5. कभी कभी क्वेश्चन होता है, एक्सप्रेस दिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड ट्राई टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c. सो मैं क्या करता हूं, दिस इंप्लाइज सारा टर्म्स को आप एक ही साइड लेके जाइए सच दैट ओनली 0 इज लेफ्ट ऑन द राइट हैंड साइड। सो देखिए 4x, ये 3x इस तरफ गया था। व्हेन यू टेक वन टर्म ऑन टू अदर साइड, ट्रांसपोजिशन हैपेंस। अगर उस तरफ पॉजिटिव है तो इस तरफ नेगेटिव हो जाएगा, उस तरफ नेगेटिव है तो व्हेन इट कम्स टू दिस साइड इट बिकम्स पॉजिटिव। सो इस तरफ प्लस 3x है, सो व्हेन इट कम्स ऑन टू अदर साइड इट बिकम्स माइनस 3x। प्लस 3y जो है ये माइनस 2y को इस तरफ लेके आया तो माइनस 2y बिकम्स प्लस 2y। And this 5, if it goes on to that side, becomes minus 5 is equal to 0. This implies 4x minus 3x क्या होगा, x होगा। 3y plus 2y क्या होगा, 5y होगा। Minus 5 is equal to 0. So now this has been expressed as something into x plus something into y plus something is equal to 0. ax plus by plus c is equal to 0 form में express हो गया। Now what are the values of a, b and c? So a is equal to 1 है, b is equal to 5 and c is equal to minus 5. ये clear है? So once you convert given equation into its standard form, आप a, b, c निकाल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल ये भी देखेंगे। So x minus 2y plus 5 is equal to 4 minus 2x plus 5y. So this implies, देखिए सारा टर्म्स को उस तरफ लेके आ जाइए। x ये minus 2x, if it goes on to the left side it becomes plus 2x. Minus 2y already है, so if plus 5y goes on to that side it becomes minus 5y. इस तरफ plus 5 है, 4 उस तरफ गया तो minus 4 is equal to 0. So this implies x plus 2x is 3x, minus 2y minus 5y is minus 7y, plus 5 minus 4 is 1. So 3x minus 7y plus 1 is equal to 0. So what are the values of a, b and c? A is equal to 3, b is equal to minus 7 and c is equal to 1. A is equal to 3,
b is equal to -7, c is equal to 1. अब let us take this equation. Is this also a linear equation? Yes. क्यों? देखिए, इसको मान लीजिए आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, समथिंग बाय समथिंग इज इक्वल टू समथिंग बाय समथिंग, देन यू कैन डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सो 4 times 3x minus 5y is equal to 3 times 4x plus 2y हो जाएगा. So this implies 12x minus 20y is equal to 12x, यहां भी 12x आ रहे देखिए, प्लस 6y. एंड आप सारा नंबर्स एक तरफ लेके आए तो 12x माइनस 12x दैट इज 0x. एक्चुअली x टर्म कैंसिल हो गया. देखिए, माइनस 20y माइनस 6y माइनस 26y इज इक्वल टू 0. सो इसमें x का कोएफिशिएंट 0 हो गया. देखिए, दैट मीन्स this has become a linear equation in a single variable. There is no x actually. But आप इसको if you consider it as a linear equation in two variables, आप ऐसा बोल सकते हैं a का वैल्यू जो है वो 0 है, b का वैल्यू -26 है, that is y कोएफिशिएंट, एंड c is equal to 0. देखिए, कांस्टेंट टर्म भी नहीं है, इसका मतलब c is also equal to 0. So in this way, if you have a linear equation in different forms, इसको आप एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, right? You can convert it to a standard form where you can find the coefficients of x, coefficient of y, coefficient of the coefficient नहीं, constant term. बहुत लोगों का माइंड में एक डाउट तो आ रहा होगा. क्या डाउट है? ये एबीसी का वैल्यूज फिक्स्ड है या नहीं? फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आई एम ट्राइंग टू लुक एट इज, ध्यान दे दीजिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू x माइनस 2y प्लस 6 है. यू राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, आप सब कुछ लेफ्ट साइड में लेके जा सकते हैं. दैट इज 2x प्लस 6y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. एक स्टेप मैं स्किप कर रहा हूं. बाय नाउ यू वुड हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम डूइंग. सो आई एम सेंडिंग एवरीथिंग ऑन टू दिस साइड. सो 2x 3x माइनस x is 2x, 4y plus 2y is 6y, minus 1 is equal to 0. If you take this as your standard form, a equal to 2 होगा, b is equal to 6 होगा, and c is equal to -1 होगा. बट आप बोल सकते हैं सब कुछ इस तरफ क्यों लेके जाना है? If you take everything onto the right side, आपको आएगा, देखिए ये 3x उस तरफ गया तो -3x हो जाएगा. x minus 3x is -2x. minus 2y minus 4y is minus 6y, plus 6 minus 5 is minus 1, sorry, plus 1 is equal to 0. So if you send every term onto left side, onto right side, आपको ये वाला term आएगा. You get this equation. This is also a standard form. यही equation का ये भी standard form है, ये भी standard form है. But यहां जो है a का वैल्यू -2 है, b का वैल्यू -6 है, c का वैल्यू +1 हो गया. सो अगर मान लीजिए क्वेश्चन देते हैं, you express the linear equation in its standard form and write the coefficients, आपका आंसर ये होगा या ये होगा? Which is the right answer? That is one question. अदरवाइज देखिए और भी हो सकते हैं. और कैसे? देखिए, मान लीजिए मैं क्या करता हूं, दोनों साइड्स 2 से मल्टीप्लाई करूंगा. आई मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स विथ 2. प्रीवियस क्लासेस में, लोअर क्लास में आप देखे कि इफ यू हैव एन इक्वेशन, यू कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन विथ एनी नॉन जीरो नंबर. कर सकते हैं आप. ओके, सो अगर
2 से मल्टीप्लाई करता हूं, 6x प्लस 8y प्लस 10 इज इक्वल टू 2x माइनस 4y प्लस 12. This and this are exactly same. Now if you convert this into standard form, 6x minus 2x is 4x, 8y plus 4y is 12y, 10 minus 12 is minus 2 is equal to 0. Now this is also a standard form. अब a is equal to 4 होगा, b is equal to 12 होगा, c is equal to minus 2 होगा. देखो all these are answers. ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है. सारा आंसर स्टैंडर्ड प्रोसेस से ही आया हुआ है. बट विच इज द राइट आंसर? सोचिए, ये तीनों आंसर्स में विच इज द राइट आंसर? सो द थिंग इज ऑल आर राइट आंसर्स. समझ में आ रहे? ऑल दीज आर राइट आंसर्स. आप अगर एबीसी का वैल्यू लिखने के लिए बोला तो ये वाला नहीं, ये वाला ट्रिपलेट लिख सकते हैं. दिस ट्रिपलेट इज ऑल्सो ए वैलिड ट्रिपलेट. दिस ट्रिपलेट इज ऑल्सो ए वैलिड ट्रिपलेट. समझ में? आपका आंसर, इफ यू कन्वर्ट दिस इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड एबीसी, योर आंसर कैन बी 2 6 माइनस 1 हो सकता है, और माइनस 2 माइनस 6 प्लस 1 हो सकते हैं, और 4 12 माइनस 2 हो सकते हैं. And you have many different answers. All those are right answers. But मान लीजिए आप लिखते हैं 4 1 2. This is not the right answer. अपने मन से कोई भी 3 नंबर्स लिखा तो right नहीं होगा. There are many different answers, but all the answers are related in some way. क्या है देखिए. This is something which you need to understand. Linear equations a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. मान लीजिए एक लीनियर इक्वेशन है a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 are exactly same or identical. दो लीनियर इक्वेशंस, दो अलग अलग लीनियर इक्वेशंस एग्जैक्टली आइडेंटिकल होना है तो द कंडीशन इज दीज टू आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल इफ a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. x कोएफिशिएंट्स का रेशियो इज सेम एज y कोएफिशिएंट्स का रेशियो इज सेम एज कांस्टेंट्स का रेशियो. If this condition is valid, then both the equations are exactly same. इसलिए आप ध्यान से देखिए, 2x plus 6y minus 1 एक इक्वेशन है, दूसरा 4x plus 12y minus 2 equal to 0. This is equal to 0, this is equal to 0. Here you have seen that both these are obtained from the same equation. The meaning is that both these equations are exactly same. अब मैथमेटिकली कैसे आप चेक करिएगा कि ये दोनों सेम है या नहीं. So the trick is try to find the coefficients of x's, coefficient of x's, coefficients of y's and ratio of constant terms. अगर तीनों सेम आए तो दोज टू इक्वेशंस आर एग्जैक्टली सेम. तो आप चेक करेंगे 2/4 x कोएफिशिएंट 2 है, x कोएफिशिएंट 4 है, सो 2/4. y कोएफिशिएंट्स क्या है 6/12. कांस्टेंट टर्म्स का रेशियोस क्या है -1/-2. आर दीज थ्री सेम? ध्यान से देखिए, 2/4 का मतलब 1/2, 6/12 का मतलब भी 1/2, माइनस माइनस कैंसिल किया तो भी 1/2. So 1/2 is equal to 1/2 is equal to 1/2. That means these two equations are exactly same. आप ABC का प्लेस में आप 2 6 -1 लिखिए या 4 12 -2 लिखिए. Both will be exactly same.
सो अब ये पहला पार्ट समझ में आया आपको? पहला पार्ट क्या है? एक लीनियर इक्वेशन दिया था अलग अलग फॉर्म्स में, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है. सो वंस यू कन्वर्ट इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, हाउ टू find the x coefficient, y coefficient and the constant. So now we'll go on to the next topic.